নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নিউজ কেন মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী তামুলপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত ৰামনাথ কোবিন্দৰ অংশগ্ৰহণ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে অধিৱেশনত উপস্থিত ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনৰ বাবে উখলমাখল হৈ উঠিছে গৌজেন ফৌথাৰ অধিৱেশনত উপস্থিত আছে মেঘালয় আৰু ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক বড়ো সাহিত্য সভাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত এই মুহূৰ্তত লোকাৰণ্য হৈ উঠিছে গৌজেন ফৌথাৰ আগবঢ়াইছো গৌজেন ফৌথাৰৰ পৰা বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ All the different communities and tribes and languages that are there in the northeast, different tribes, they may be small, but their identity comes from the language and the culture that they have. I urge you, Honorable Sir, that if these languages could be promoted and protected in the long-term interest of the identity of these tribes. My late father, Shri P.A. Sangmaji, was somebody who had a great affinity for the Bodo people. मुझे अभी भी याद है जब पार्लियामेंट में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो जब बोडोलैंड में काफी इश्यूज चल रहे थे तो लेट पीएस सांगमा जी ने उस समय बोडो लोगों के लिए और बोडोलैंड के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में और लोकसभा में आवाज उठाई थी वो मुझे अभी भी याद है और जो प्यार और जो एक रिस्पेक्ट जो उन्होंने बोडो पीपल की तरफ दिखाया सिमिलरली बोडोलैंड के लोगों ने पीएस सांगमा जी के तरफ भी वही रिस्पेक्ट और प्यार दिखाया कुछ ही दिनों में मैं बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं वहां पे बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने और वहां मैनेजमेंट ने पीएस सांगमा मेमोरियल लेक्चर एक ऑर्गेनाइज किया इसके लिए मैं बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं So Honorable President Sir, I know that you have a very tight schedule and I do not want to take much time. Once again, your presence in a program like this is not just an inspiration to the people of Bodo areas, but it shows your concern and your respect for all the tribes of the Northeast. This sends a very powerful message to the people of the Northeast that as a government and as the president of this country, every single community is important. It sends a message that every language that is being spoken throughout the country must be preserved and must be given the due importance, and this message will reach every corner of the Northeast. And once again, on behalf of the people of the Northeast, especially of Bodo area, I would like to thank you for coming for a very, very important function like this. Today, the government of India has also shown a lot of interest in ensuring that the local languages are preserved and are taught in school, are documented and are promoted. So therefore, I thank the Honorable Prime Minister also for his initiative to ensure that all these languages, different tribal languages and community languages should be preserved and promoted. With these few words, once again, I would like to thank the Bodo Sahitya Sabha and all the organizing committee members. I would like to thank the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma ji, and I would like to thank you, sir, and madam, for coming here and gracing this occasion and being somebody who has shown a large amount of interest for the people of the Northeast. With these few words, once again, thank you very much and Jai Hind. Thank you, sir, for your valuable speech. Now I request our Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, sir, to inaugurate a book
rule of procedure and conduct of business in Assam Legislative Assembly in Bodo language. And after that, he will deliver his speech. Dayo Assamni Mangunang Gibi Montri Dr. Himonto Biswa Sarma Bitanga Assam Ain Afatni Bikhanti Aru Habafari Samlainani Khanti Be Aidani Bizabko Bekeunane Hogan. Sir. Okay, thank you. Boy, kuba akai kobnane takai kaulaibai. Okay, thank you, thank you. Now, Honorable Chief Minister is requested to deliver his speech. परम आदरणीय भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारतवर्ष की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रोफेसर जगदीश मुखी, गवर्नर ऑफ Assam, my colleague from Meghalaya, Honorable Chief Minister Sri Conrad Sangma, my colleague from Sikkim, Honorable Chief Minister Sri Prem Singh Tamang, Sri Bishwajit Doimari, Speaker Assam Legislative Assembly, Urkhao Gora Brahma, Minister in the Government of Assam, Sri Pramod Boro, Chief Executive Member, Bodoland Territorial Council, Rangora Narjari, Member Parliament Rajya Sabha, Sri Toren Boro, Boro Sahitya Sabhar Honmaniya Sabhapati, Sri Prasanto Boro, Boro Sahitya Sabhar Honmaniya Sadharan Sampadak, Sri Dipen Boro, Nikhil Boro Chhatra Santhar Honmaniya Sabhapati, উপস্থিত মোৰ অতিকে সন্মানৰ ৰাইজ, আইসকল, দেউতাসকল আৰু সুধীবৃন্দ, আজি আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত গৌৰৱ আৰু বিৰল মুহূৰ্ত। आप लोग को ये जान के बहुत ही गौरवान्वित आप लोग को महसूस होगा कि असम में असम साहित्य सभा, निखिल बोरो साहित्य सभा, हमारा सारा कम्युनिटी का अपना अपना साहित्य सभा है, लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आज तक भारतवर्ष का कोई भी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे ये लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल कन्वेंशन से भाग लेने के लिए नहीं आया था। पहला बार मैं मेरे लिए गौरवान्वित महसूस करता हूं, हम सब आसाम वासी गौरवान्वित महसूस करता है कि भारतवर्ष का महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमारा बीच आए। हाँ, ये भी सत्य है कि 1976 में आसाम साहित्य सभा का अधिवेशन में स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद जी आए थे, लेकिन वो आसाम का संतान थे। भारतवर्ष का महामहिम राष्ट्रपति का रूप में और जो असम का संतान नहीं, ऐसा एक रूप में श्री रामनाथ कोविंद जी पहला बार हमारा सामने आए हैं। मैं उनको सही दिल से दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं। আজি আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ 61তম অধিৱেশন, সংবিধানৰ 8ম শিডিউলত বড়ো ভাষা সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ লগে লগে বড়ো ভাষাই এক নতুন ৰূপত ভৰি দিছে আৰু চাৰিওফালে বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়িছে। বড়ো ভাষাক সংবিধানৰ 8ম অনুসূচীলৈ আনিবৰ বাবে বড়ো জাতিয়ে
বিভিন্ন ধৰণে ত্যাগ আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছিল। আজি সেই ত্যাগ আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰা প্ৰতিগৰাকী মনীষীলৈ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। साथ में मैं ये भी जोग करना चाहता हूं कि जब बोडो भाषा को संविधान का 8वां अनुसूची में लाने का प्रयास चल रहा था, उस समय हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को दोबारा अभिनंदन करना चाहता हूं। আজিৰ পৰা প্ৰায় 6টা দশক পূৰ্বে অসমৰ এটা অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠী বড়োসকলে নিজৰ ভাষা সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ অনুষ্ঠানটি গঢ়ি তুলিছিল। বড়ো সাহিত্য সভা নামৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ উদ্দেশ্য আছিল বড়োসকলৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বিকাশ। ভাষাবিদ পণ্ডিতসকলৰ মতে তিব্বত চীনীয় ভাষা গোষ্ঠীৰ তিব্বত বৰ্মী শাখাৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য শাখাটো হৈছে অসম বৰ্মী শাখা। এই শাখাৰ দুটা প্ৰধান ভাগ হৈছে বড়ো নগা আৰু কুকি চীন। বড়ো নগা শাখাৰ ভিতৰত এটা অন্যতম শক্তিশালী আৰু প্ৰধান ভাষা হৈছে বড়ো ভাষা। বড়ো ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বিকাশৰ বাবে 1952 চনৰ 16 নৱেম্বৰত গঠন হোৱা বড়ো সাহিত্য সভাই এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি বড়ো সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ বাবে নিৰলস প্ৰয়াস চলাই আহিছে। আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী মাননীয় সভাপতি জয়ভদ্ৰ হাগজেৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সোণাৰাম থাউচেন ডাঙৰীয়ালৈ মই শ্ৰদ্ধা আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ হ'ল বসতিস্থলী। এই জাতি জনগোষ্ঠীৰ সুৱদী সুৰীয়া ভাষাসমূহে বৃহত্তৰ জাতিক বৰ্ণিল কৰাই নহয়, আমাৰ সামগ্ৰিক সত্তাকো অনন্য মাত্ৰা আৰু আয়তন প্ৰদান কৰি আহিছে। প্ৰতিটো সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাহিত্যৰ বিকাশ অবিহনে আমাৰ সামগ্ৰিক বিকাশ নহয়। সেয়ে এনে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাহিত্যক সংৰক্ষণ সমৃদ্ধি আৰু বিশ্বমুখী যাত্ৰাৰ অৰ্থে আমি পূৰ্বতকৈ অধিক প্ৰণালীবদ্ধ গতিৰে আগবাঢ়িব লাগিব। নিখিল বড়ো সাহিত্য সভাকে ধৰি ভাষা সাহিত্য সভাৰ সাধনাত ব্ৰতী সাহিত্য সংগঠনসমূহৰ এই দিশত দায়িত্ব অপৰিসীম। সাহিত্য সভাসমূহে ভাষা সাহিত্যৰ বিকাশৰ উপৰিও সাংস্কৃতিক আদৰ্শৰাজিও জনমানসত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব লাগিব। আমি আমাৰ শক্তিশালী জাতি সত্তাসমূহক বিকশাই তুলিব লাগিব সাহিত্যৰ মাজেৰে। মই আশা কৰিছোঁ সাহিত্যৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে অকল সাহিত্য সভা সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে। সাহিত্যৰ বিকাশ আৰু উত্তৰণ ঘটে সাহিত্যৰ প্ৰসাৰণৰ ওপৰত। এই প্ৰসংগত সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ কিছু কথা মোৰ মনলৈ আহিছে। জাতীয় সাহিত্য আৰু জাতীয় উন্নতি শীৰ্ষক এটা লেখাত বেজবৰুৱাদেৱে অভিমত ব্যক্ত কৰি কৈছিল, যি সাহিত্যই যি ভাষাই নিজক সংকুচিত নকৰি গাৰ চাৰিওফালে দুটৰ পৰিয়াকৈ গাধৰ চকুৱা নিদি চলিছে, সেই ভাষা সেই সাহিত্য বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু যি তাৰ ওলোটা বাটে চলিছে সি নিধনপ্ৰাপ্ত হৈছে। এফালে ইংৰাজী ভাষা সাহিত্য আৰু আনফালে সেই দুখৰৰ লেটিন গ্ৰীক ভাষালৈ চালেই এই কথা বোধগম্য হয়। বড়ো সাহিত্য সভাই এই দিশত নিশ্চয় মন দিব। বড়ো সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিক এটা গণ্ডিৰ মাজত আবদ্ধ নাৰাখি এই ভাষা সাহিত্যৰ বুৱতী ধাৰাক আমি ববলৈ দিব লাগিব আৰু এই ভাষা সাহিত্যক বিকাশৰ পৰকাষ্ঠালৈ লৈ যাব লাগিব। বড়োসকলৰ নিকটতম সহোদৰ তথা প্ৰতিবেশী হিচাপে বসবাস কৰি অহা অসমৰ অন্যান্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীসমূহৰ সৈতে
বড়োসকলৰ সম্পৰ্ক প্ৰাগ ঐতিহাসিক কালৰে পৰা বৰ্তি আহিছে। সহস্ৰাধিক বছৰ ওচৰা ওচৰিকৈ বসবাস কৰাৰ ফলত বড়োসকলৰ অনুপম সাংস্কৃতিক উপাদানবোৰ অন্যান্য সংস্কৃতি বিশেষকৈ বৃহত্তৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ক'ব নোৱাৰাকৈ অংগীভূত হৈ পৰিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৃহত্তৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটোক গঢ় দিবলৈ যাওঁতে অসমৰ জনজাতীয় সমাজবোৰৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁ বৰ অসমীয়া জাতিৰ উপাদানবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে সেয়া এক মনোৰম বৰ্ণনা। লালুং কছাৰীয়ে তেওঁলোকৰ সমূহীয়া উপাসনা কৰা গৃহক বৰঘৰ বোলে। শংকৰদেৱে নামঘৰ এই বৰঘৰৰ আৰ্হিতে সজাইছে বুলি একাংশ পণ্ডিতে মত পোষণ কৰিছে। কোনোৱে অৱশ্যে শংকৰদেৱৰ এই পৰিকল্পনাত মিচিংসকলৰ মুৰংঘৰৰ বৈশিষ্ট্য আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। কীৰ্তন ঘৰৰ মূল লাই খুঁটাটোৰ বোলাৰ পৰম্পৰা আহোমৰ পৰা আহে। তিৱা জনপ্ৰিয় বাদ্য লুডাংখ্ৰামৰ লগত খোলৰ সাদৃশ্য আছে। তেনেদৰে দবাও জনজাতীয় ঐতিহ্যৰ এবিধ বাদ্য। নাটকৰ সূত্ৰধাৰৰ পাগুৰিটো জয়ন্তীয়া পৰম্পৰাৰ পৰা অহা বুলি পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰে। বৰগীতৰে শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰা স্বকীয় আৰু অনন্য সংগীতৰ ধাৰাত জনজাতীয় সুৰৰ মিশ্ৰণ ঘটিছে। শংকৰী নৃত্যৰ গায়ন বায়নৰ পৰম্পৰা সোণোৱাল কছাৰীৰ পৰা অহা। এই নৃত্যত বড়ো, কাৰ্বি, মিচিং, জয়ন্তী আদিৰ হস্তপদ সঞ্চালনৰ মুদ্ৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বড়ো আৰু অসমীয়া ভাষাৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল বিভিন্ন আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে। আবহমান কালৰ পৰা সামাজিক জীৱনত এই আদান প্ৰদান অতি নীৰৱে দুইখন সমাজৰ মাজত চলি আছে আৰু চলি থাকিব। ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো বড়ো ভাষাৰ ভালেমান উপাদান অসমীয়া ভাষাত থকাৰ কথা পণ্ডিতসকলে উল্লেখ কৰিছে। ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে তেখেতে আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপ নামৰ গ্ৰন্থখনত এই সম্পৰ্কে দীঘলীয়া আলোচনা দাঙি ধৰিছে। তেওঁ কৈ গৈছে নামৰ আগত দ্বিযুক্ত নদীৰ নামবোৰ যেনে দিখৌ, দিক্ৰং, দিচাং আদি নদীবোৰৰ নাম বড়ো মূলৰ। তেনেদৰে হাজো, হাকামা, বিহামপুৰ আদি বড়ো মূলৰ ঠাইৰ নাম। আনহাতে অসমীয়া ভাষাৰ বহু শব্দৰ আদিৰূপ বড়ো কছাৰীসকলৰ লোক সংস্কৃতিৰ মাজত বিচাৰি পোৱা যায়। বড়োসকলৰ খেৰাই পূজাৰ ভিতৰতে আৰু গীতবোৰৰ মাজতো তদ্ৰূপ লোক সংস্কৃতিৰ উপাদান পোৱা যায়। ভৈয়ামৰ কৃষিজীৱী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সংস্কৃতিৰ একতা আনি দিছিল নাঙলৰ ব্যৱহাৰে। বড়োসকলৰ নাঙলক নাংগল বোলে। বড়ো আৰু অবড়ো অসমীয়া খেতি বাতিৰ সঁজুলি, ঘৰ সজাৰ প্ৰণালী, তাঁতশাল আৰু ঘৰুৱা জীৱনত আমি সম্পূৰ্ণ মিল দেখিবলৈ পাওঁ। বড়ো ভাষাৰ শব্দ ভাণ্ডাৰ আৰু সাংস্কৃতিক। बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक अधिवेशन के मंच पर विराजमान भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्रीमान के संगमा जी, असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमारी जी, असम सरकार में मंत्री श्री यूजी ब्रह्मा जी, राज्यसभा के सांसद श्री रंगोरा नरजारी जी, बीटीआर के सीएम श्री प्रमोद बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष श्री तोरेन बोरो जी, जनरल सेक्रेटरी श्री प्रशांत बोरो जी, स्टूडेंट यूनियन ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं बोडो साहित्य सभा के इस वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं।
बोडो साहित्य सभा के इस अधिवेशन में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज यहाँ भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का पदार्पण हुआ है। मैं अपने राज्य और राज्यवासियों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मानव जीवन में साहित्य का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि साहित्य ही मनुष्य की बुराइयों का अंत करता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनेक साहित्यकारों का मानना है कि साहित्य के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का ये मानना था कि जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है। साहित्य से ही मनुष्य का जीवन खुशियों से भरता है। साहित्य से ही मनुष्य के जीवन में आनंद आता है। जिस तरह से एक भवन की नींव नीचे से खड़ी की जाती है एवं नीचे की नींव को मजबूत किया जाता है और उस नींव पर पूरा भवन खड़ा किया जाता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन साहित्य से मजबूत होता है। साहित्यकार हमेशा लोगों की भलाई के लिए लिखते और रचते हैं। मित्रों, साहित्य का सृजन भाषा से ही संभव होता है। इसलिए भाषा और साहित्य के बीच अन्योन्याश्रित आश्रित संबंध हैं। साहित्य के निर्माण में मातृभाषा यानी निज भाषा का अहम योगदान होता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक काल के विशिष्ट कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मातृभाषा के महत्व को बताते हुए कहा है कि भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक वैभव की स्थापना का प्रथम पायदान निज भाषा यानी मातृभाषा ही है। मातृभाषा के ज्ञान और अध्ययन के बिना मानो सब कुछ व्यर्थ है। कोई बालक यदि पढ़ाई के माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा को चयन करता है तो अक्सर उसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मातृभाषा में शिक्षण से अनेक लाभ मिलते हैं। वस्तुतः मातृभाषा हर भारतीय को भारत से जोड़ने और विश्व को समझने में सक्षम बनाती है। संक्षेप में कहा जाए तो भारतीय संस्कृति के उत्थान में हमारी भारतीय भाषाओं का अप्रतिम योगदान रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी भारतीय भाषाओं के प्रयोग एवं संवर्धन के अनेक प्रावधान किए गए हैं। अतः मैं इस अवसर पर बोडो साहित्य सभा सहित प्रदेश के सभी शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों और संस्थानों से अपील करना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में वे आगे आएं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस नई शिक्षा नीति से हमारी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को पूरा सपना पूरा होगा। मित्रों, जहां तक बोडो भाषा एवं साहित्य के संवर्धन की बात है, मैं समझता हूं कि इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान बोडो भाषा और साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं होंगी। अगर संक्षेप में कहा जाए तो बोडो भाषा एक प्राचीन एवं मधुर भाषा है। इसका साहित्य भी बहुत समृद्ध है। बोडो भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद इसका विकास और तेज हुआ है। बोडो साहित्य सभा अपने स्थापना काल से ही बोडो भाषा और साहित्य के संवर्धन के साथ ही अपनी गौरवशाली परंपराओं और समृद्ध संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का
महत्वपूर्ण काम कर रही है। विद्वान कहते हैं कि जिस समाज में जितना अधिक साहित्य का सृजन होता है वह समाज उतना ही सशक्त और समृद्ध बनता है। मुझे आज यह जानकर प्रसन्नता है कि बोडो साहित्य सभा के बैनर तले अनेक प्रकार के सृजनात्मक कार्य हो रहे हैं। बोडो साहित्य सभा ने भारतीय तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली आयोग, भारतीय अनुवाद परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से अनेक पुस्तकों सहित शब्दकोश का भी निर्माण किया है। बोडो साहित्य के संवर्धन और विकास में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनमें जयभ्रद हाजर, धरणीधर बसुमात्री मतारी, सोनाराम थोसेन, जोगेंद्र कुमार बसुमतारी, सीतानाथ ब्रह्म आदि प्रमुख हैं। बोडो साहित्य की श्रीवृद्धि में नए लेखकों के योगदान भी संतोषजनक और सराहनीय रहे हैं। कई बोडो साहित्यकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं आज इस अवसर पर बोडो साहित्य सभा के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं बोडो साहित्य सभा के इस वार्षिक अधिवेशन के भव्य आयोजन में अपना योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि बोडो साहित्य सभा अपनी भाषा और साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ असम के सर्वांगीण विकास के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Honorable Governor of Assam. Now, I request our chief guest, Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji, to launch the Bihung app on online dictionary in Bodo language for e-translation. Boykobo akai khopnane. Thank you, sir. Thank you. Now you are requested to deliver your speech. Now I may request our Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji, to deliver his speech. बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमंग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, असम के कैबिनेट मिनिस्टर श्री यूजी ब्रह्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री रवंगवरा नारजारी जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी, साहित्य सभा के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री तोरेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के महासचिव श्री प्रशांत बोरो जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी,
अन्य विशिष्ट अतिथिगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और नौजवान साथियों, खुलुमबाय। बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं आप सबकी सराहना करना चाहता हूं। मुझे इस समारोह में शामिल होकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मेलन के सभी आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और इस सम्मेलन में जो आप लोग आए हैं, आने वालों का अभी तांता लगा हुआ है। मैं बाएं तरफ अपने देख रहा था कि अभी भी लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जाने वाले कम है, आने वाले अधिक है। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की, बाएं हाथ पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, प्रातः जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो बैरिकेड्स के बीच में, बैरिकेड से आगे हट करके बहुत सारा गैप था और पश्चात में देखता गया कि लोग आते गए और विशेष करके हमारी बहनों, बेटियों में इतना उत्साह दिखा कि उनको, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बैरिकेड्स को क्रॉस करके उन हमारी बहनों और बेटियों को आगे बिठाया। ये एक मैं दृश्य आपके सामने रख रहा हूं कि बोडो भाषा साहित्य सम्मेलन जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन के प्रति लोगों में आकर्षण कितना है। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि असम में लगभग 35 लाख लोग बोडो भाषा बोलते हैं। असम के अलावा बोडो भाषा बोलने वाले लोग पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा और यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाल में भी निवास करते हैं। अब ये साहित्य और भाषा हमेशा लोगों को जोड़ती है, लोगों के दिलों को जोड़ती है। और वो ऐसी कौन सी बातें हैं भाषा में होती हैं जो अपनापन होता है, और वो अपनापन आज न जाने हमारे समकक्ष जो प्रदेश जिनका मैंने नाम लिया, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, और विदेशों से बांग्लादेश और नेपाल से भी यहाँ पर कुछ प्रतिनिधिगण आए हैं। ये कितना आकर्षण है, जो कि भाषा, बोडो भाषा विदेशों से भी लोगों को यहाँ पर खींच लाई है। और इसलिए मैं साहित्य सभा के आयोजनों को मैं बार बार सराहना करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। आप सब लोगों ने देखा, मुझे भी देखकर प्रसन्नता हुई कि सिक्किम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में उपस्थित हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी का उद्बोधन भी हम सब लोगों ने सुना, और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी से मैं पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं बोल रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कार्यक्रम तो अभी चलने वाला है और मैं बोलूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे समक्ष आप बोलते तो समय सीमा रहती, और जब मैं चला जाऊंगा तो आप खुल करके बोलिएगा। ये भी मुझे प्रसन्नता की बात है कि जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि बांग्लादेश और नेपाल के बोडो भाषी प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, इसी वर्ष मुझे बताया गया कि जनवरी में तामुलपुर जिले का गठन हुआ है। मैं तामुलपुर जिले के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित इस जिले के सभी निवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के राज्यों की सरकारों के मिले जुले प्रयासों से
इस क्षेत्र में सौहार्द और शांति का वातावरण और भी मजबूत होता जा रहा है। इस परिवर्तन के लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा बोडो क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूँ। इस बदलाव में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थापित है, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। कोकराझार में स्थित बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर राज्यपाल महोदय स्वयं हैं, तथा अनेक महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक्स में विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की राह बना रहे हैं। इसके अलावा अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस सभा स्थल के क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। देवी और सज्जनों, असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम की जनता के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। विकास तथा जन कल्याण के ऐसे कार्यों के लिए मैं राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी ने भी बोडो भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए इस सम्मेलन के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं श्री दैमारी जी को भी साधुवाद देता हूं। देवी और सज्जनों, बोडो समाज के लोगों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरे लिए बोडो संस्कृति और भाषा से संपर्क कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं राज्यसभा सांसद था, तब इस क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों के साथ मेरा मिलना जुलना होता था। हम सब गर्म जोशी के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे और बोडोलैंड के बारे में भी बात करते थे। उनमें से मेरे कुछ परिचित तो आज की सभा में भी उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए यहाँ उपस्थित श्री यूजी ब्रह्मा। यूजी ब्रह्मा ने न केवल एक जनप्रतिनिधि और राज्यसभा सदस्य के रूप में, बल्कि असम सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। बल्कि वे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्कालीन उस समय एक सांसद हुआ करते थे, श्री एस.के. बासुमतारी। उनका भी मैं नाम आज लेना चाहूँगा। वो मेरे अच्छे मित्र थे और उनकी विशेषता ये थी कि जब हम लोग उनको नमस्ते कहते थे तो वो नमस्ते का उत्तर हमेशा जय बोडोलैंड बोलकर दिया करते थे। देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि सामान्यतया राष्ट्रपति किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल में नहीं आते। ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आना किसी राज्य में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और उन मर्यादाओं के कारण संभवतः आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी, आपका, असम के लोगों का, उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच बीच में मिलता रहता है, वो मुझे बार बार खींच भी लाता है और इसीलिए मैं 3 महीने के अंतराल में दोबारा फिर आ गया। मित्रों, मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि मई का महीना बोडो भाई बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर साल 1 मई को आप सब बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि मनाते हैं, जो आज से 3 दिन पहले ही थी। बोडोफा ने जियो और जीने दो का जो महान संदेश था उसको प्रसारित किया था। बोडो आत्मगौरव के प्रति सचेत रहते हुए
सभी समुदायों के साथ सद्भाव बनाए रखने का बोडोफा का संदेश हम सभी के लिए एक मंत्र जैसा है। मैं उनके संदेश को उन्हीं के शब्दों में ठीक ठाक तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके संदेश को बोडो भाषा में दोहराने का प्रयास जरूर करूंगा। उन्होंने कहा था, थान आरो थाना नहीं थानो हा। देवी और सज्जनों, शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा को मान्यता देने का उत्सव वर्ष 1963 से प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। आज से लगभग 15 दिन बाद आप सब वह उत्सव भी मनाएंगे। उस महत्वपूर्ण उत्सव की मैं आप सबको अग्रिम बधाई भी देता हूं। देवियों और सज्जनों, बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के उत्थान हेतु लगभग 70 वर्षों से अमूल्य योगदान देने के लिए बोडो साहित्य सभा का प्रयास उल्लेखनीय है। सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जयभद्र हागजेर तथा महासचिव सोनाराम थावसेन ने बोडो भाषा के महत्व और मान्यता में वृद्धि करने के लिए सराहनीय प्रयास किए थे। स्कूली शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा के प्रयोग को स्वीकृति दिलाने तथा उच्च शिक्षा में बोडो भाषा को स्थान दिलाने जैसे प्रयासों में बोडो साहित्य सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई है। आप लोगों के प्रयास के फलस्वरूप बोडो भाषा को असम राज्य की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। बोडो भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने वाले महानुभावों का इतिहास बहुत प्रेरणादायक है। 20वीं सदी के आरंभ में बोडो पुनर्जागरण के जनक गुरुदेव श्री कालीचरण ब्रह्मा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के प्रयासों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा व सांस्कृतिक चेतना का भी प्रसार किया था। श्री रूपनाथ ब्रह्मा ने बोडो पुनर्जागरण की धारा को आगे बढ़ाते हुए बोडो भाषा और साहित्य को समृद्ध किया। बोडो भाषा और साहित्य के विकास में बीबर नामक पत्रिका का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका प्रकाशन आज से लगभग 100 वर्ष पहले सन 1924 में शुरू हुआ था। उसके संपादक श्री सतीश चंद्र बासुमतारी ने उस पत्रिका के माध्यम से बोडो समाज, भाषा और साहित्य में एक नई जागृति उत्पन्न की थी। देवियों और सज्जनों, श्री मदाराम ब्रह्मा ने बोडो नाटक और कविता के साथ साथ शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी थी। पद्मश्री का सम्मान प्राप्त करने वाले बोडो समुदाय के प्रथम व्यक्ति के रूप में उनका विशेष स्थान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री विजेंद्र कुमार ब्रह्मा बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे। प्रखर सामाजिक चेतना से युक्त साहित्य की रचना करने वाले तथा बोडो साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर ब्रह्मा को सन 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मंगल सिंह हाजोवरी को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से अलंकृत करने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मंगल सिंह हाजोवरी और नीलकमल ब्रह्मा जैसे अनेक बोडो रचनाकारों ने पर्यावरण को बचाने की चिंता से प्रेरित रचनाएं की हैं। मानवता के समक्ष उपस्थित ऐसी गंभीर चुनौती के विषय पर लेखन करना बोडो साहित्य की प्रासंगिकता का प्रभावशाली उदाहरण है। बोडो साहित्य को अनेक रचनाकारों ने समृद्ध किया है, जिनमें से समय के अभाव के कारण कुछ नामों का ही मैंने उल्लेख किया है। देवियों और सज्जनों, बोडो और असमिया भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सौहार्द के उदाहरण के रूप में मैं श्री सीतानाथ ब्रह्मा चौधरी का भी उल्लेख करना चाहूँगा। वे बोडो और असमिया दोनों ही भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन करते थे। वे असम साहित्य सभा के अध्यक्ष चुने गए। यही नहीं, उनके नाम पर असम साहित्य सभा द्वारा सीतानाथ ब्रह्मा चौधरी पुरस्कार भी दिया जाता है।
बोडो अस्मिता तथा अन्य समुदायों के साथ सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का आदर्श सीतानाथ ब्रह्मा चौधरी के जीवन और कृतियों में भी देखा जा सकता है। बोडो भाषा की रचनाओं के आधार पर अब तक 17 रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। मैंने देखा है कि उनमें 10 पुरस्कार कविता की पुस्तकों के आधार पर दिए गए। इससे बोडो रचनाकारों में कविता के प्रति स्वाभाविक रुझान का अनुमान दिखाई पड़ता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अनेक महिलाएं बोडो साहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य का सृजन कर रही हैं, लेकिन यह भी देखने में आया है कि मौलिक रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले वरिष्ठ रचनाकारों में केवल 2 महिलाओं का ही नाम है। मैं चाहता हूं कि महिला रचनाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मान्यता प्राप्त हो। मैं चाहूंगा कि बोडो साहित्य सभा द्वारा महिला रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। देवियों और सज्जनों, किसी भी साहित्य को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः बोडो साहित्य सभा द्वारा युवा रचनाकारों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। देवियों और सज्जनों, बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ और उसकी घोषणा जनवरी 2004 में की गई। उस समय भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। कवि हृदय वाजपेयी जी के व्यक्तित्व में भाषा, साहित्य और संवेदना के प्रति अनुराग झलकता था। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर के समारोह के अवसर पर मैं उनकी स्मृति को भी नमन करता हूँ। बोडो साहित्य सभा के उद्देश्यों और लक्ष्यों में मातृभाषा के जरिए शिक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। आपकी सभा का यह उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह निहित मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप भी है। इस शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाए जाने की सिफारिश की गई है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि बोडो भाषा में अन्य भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद बड़े उत्साह के साथ किया जा रहा है। यह किसी भी जीवंत साहित्यिक समुदाय की पहचान है। मुझे विश्वास है कि ऐसे अनूदित साहित्य से बोडो भाषा के पाठकों को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ विश्व साहित्य से परिचित होने का अवसर मिलेगा। मुझे यह भी जानकर प्रसन्नता हुई कि साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारतीय भाषा संस्थान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जैसे केंद्र सरकार के संस्थान बोडो भाषा के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मित्रों, भाषा भाषा होती है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, चाहे वो व्यक्ति विशेष की भाषा हो या व्यक्तियों के समुदाय की भाषा। भाषा, स्थानीय भाषा, उस भाषा को प्रोटेक्शन, संरक्षण देना, उसका प्रचार और प्रसार करना, ये समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, बोडो भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए जितना भी प्रयास हो वो आपकी सरकार करे। मैं ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ। अंत में मैं बोडो भाषा से जुड़े सभी लोगों को ये शुभकामना देता हूँ कि बोडो भाषा खूब फले फूले बोरो राव गेवालान थो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, हम सदा ही आपके आभारी रहेंगे। अभी राष्ट्रगान के लिए मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ। बयखौबो गसंनानै जोंनि माहारियारि सं मेथाइखौ खननो थाखाय खावलायबाय।
बयबो आखाइ खबनानै हादरगिरि बिथांखौ साबायखर होनांगौ। धन्यवाद। आप सभी को बोडो साहित्य सभा की ओर से আমি দেখুৱালো আপোনাক 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ, য'ত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে আজি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ উপস্থিতিত উগদুলি মুদলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে গৌজান ফৌঠাৰ। আৰু গৌজান ফৌঠাৰত আজি সামৰণি পৰিব বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ। আৰু আজিৰ এই কাৰ্যসূচীতে উদ্ভাসিত হৈ উঠে বড়ো সাহিত্য সংস্কৃতি। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰে। বড়ো ভাষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰে। আৰু সমান্তৰালকৈ অসমত যি ৩৫ লাখ বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকে বসবাস কৰে, গতিকে বড়োসকলৰ গুৰুত্বৰ কথাও আজি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী, উপস্থিত থাকে ছিকিম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও। সমান্তৰালকৈ বাংলাদেশ আৰু নেপালৰ প্ৰতিনিধিয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচীত। লোকে লোকাৰণ্য হৈ উঠে গৌজান ফৌঠাৰ। আৰু গৌজান ফৌঠাৰত এই মুহূৰ্তত উদুলি মুদলি উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি পৰিৱেশ জীপাল হৈ উঠে সাহিত্য সভাৰ। এষষ্ঠি সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ আজি সামৰণি পৰিব। আৰু সামৰণিৰ আজি মুকলি সভা বিশেষ অনুষ্ঠান। আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৰামনাথ কোবিন্দক আজি আদৰণি জনোৱা হয়। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সন্মুখত বড়ো সাহিত্য সংস্কৃতি আজি জীপাল হৈ উঠে আকৌ এবাৰ এই অধিৱেশনত। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ উপস্থিতিত থৌকি বাথৌ হৈ উঠে বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী। বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সাহিত্য সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। এই কথা ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত বড়ো সাহিত্যৰ যি অৱদান বৰঙণি, আৰু সেই কথাও আজি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। লগতে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ প্ৰদান কৰে। সাহিত্য হ'ল এটা জাতিৰ চানেকি স্বৰূপ, এটা জাতিৰ দাপোন স্বৰূপ, সেই কথা উল্লেখ কৰে ৰাজ্যপাল প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখীয়েও। আৰু বড়ো সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনে বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে, বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। আৰু আজি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন, যি অধিৱেশনত লোকে লোকাৰণ্য হৈ উঠে। বিশাল জনতাৰ সমাৱেশ দেখি অভিভূত হৈ উঠে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ।
আৰু তামোলপুৰৰ পৰা তেওঁ পুনৰ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব। গুৱাহাটীত আজি বিয়লি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূব মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। কালি সপত্নীক তেওঁ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত তেওঁক আদৰণি জনোৱা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদৰণি জনায় আৰু আজি পুৱাই হেলিকপ্টাৰ যোগে তেওঁ ৰাওনা হয় তামোলপুৰলৈ। তামোলপুৰত তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। সামৰণি অনুষ্ঠান আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ আজি সামৰণিৰ অৰ্থাৎ মুকলি সভাৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ওচৰত পাই উৎফুল্লিত হৈ উঠে বড়ো সাহিত্য প্ৰেমীসকল। লোকে লোকাৰণ্য হৈ উঠে বড়ো সাহিত্য সভাৰ আজি অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী। সাহিত্য অনুৰাগীসকলৰ হৰ্ষোল্লাসেৰে জীপাল হৈ উঠে আজি অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী। আৰু আজিৰে পৰা নিজম পৰিব গৌজান ফৌঠাৰ। এই গৌজান ফৌঠাৰতে তামোলপুৰৰ এই গৌজান ফৌঠাৰতে 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয়। আৰু ইতিমধ্যেই আজি অন্তিম দিনৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। আৰু 3দিনীয়া বৰ্ণিল বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ আজি নিজম পৰিব গৌজান ফৌঠাৰ। আজি পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয় তৃতীয় দিনৰ তথা অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত। কাৰণ ৰাষ্ট্ৰপতি আহিব তাকে লৈ উৎসুকতাৰে বাট চাই আছিল সাহিত্য অনুৰাগীসকল। আৰু অৱশেষত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিলে আৰু ভাষণ প্ৰসংগত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে যে তেওঁ পূৰ্বেও বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ সৈতে এটা সম্পৰ্ক আছিল। বিশেষকৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত অসম ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদৰ সৈতে তেওঁ সুসম্পৰ্ক আছিল। সেই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ভাষণ প্ৰসংগত। আনহাতে অসমত বসবাস কৰা ৩৫ লাখ বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। কেৱল অসমতেই নহয় বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ বসবাস আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, असम के कैबिनेट मिनिस्टर श्री यूजी ब्रह्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री रमंगवरा नारजारी जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी, साहित्य सभा के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री तोरेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के महासचिव श्री प्रशांत बोरो जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और नौजवान साथियों, खुलुमबाय। बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं आप सबकी सराहना करना चाहता हूं। मुझे इस समारोह में शामिल होकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मेलन के सभी आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और इस सम्मेलन में जो आप लोग आए हैं, आने वालों का अभी तांता लगा हुआ है। मैं बाएं तरफ अपने देख रहा था
कि अभी भी लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जाने वाले कम है, आने वाले अधिक है। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की, बाएं हाथ पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, प्रातः जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो बैरिकेड्स के बीच में, बैरिकेड से आगे हट करके बहुत सारा गैप था और पश्चात में देखता गया कि लोग आते गए और विशेष करके हमारी बहनों, बेटियों में इतना उत्साह दिखा कि उनको, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बैरिकेड्स को क्रॉस करके उन हमारी बहनों और बेटियों को आगे बिठाया। ये एक मैं दृश्य आपके सामने रख रहा हूं कि बोडो भाषा साहित्य सम्मेलन जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन के प्रति लोगों में आकर्षण कितना है। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि असम में लगभग 35 लाख लोग बोडो भाषा बोलते हैं। असम के अलावा बोडो भाषा बोलने वाले लोग पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा और यहां तक कि बांग्लादेश और नेपाल में भी निवास करते हैं। अब ये साहित्य और भाषा हमेशा लोगों को जोड़ती है, लोगों के दिलों को जोड़ती है, और वो ऐसी कौन सी बातें हैं भाषा में होती हैं जो अपनापन होता है, और वो अपनापन आज न जाने हमारे समकक्ष जो प्रदेश जिनका मैंने नाम लिया, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, और विदेशों से बांग्लादेश और नेपाल से भी यहाँ पर कुछ प्रतिनिधिगण आए हैं। ये कितना आकर्षण है, जो कि भाषा, बोडो भाषा विदेशों से भी लोगों को यहाँ पर खींच लाई है। और इसलिए मैं साहित्य सभा के आयोजनों को मैं बार बार सराहना करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। आप सब लोगों ने देखा, मुझे भी देखकर प्रसन्नता हुई कि सिक्किम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में उपस्थित हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी का उद्बोधन भी हम सब लोगों ने सुना, और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी से मैं पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं बोल रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कार्यक्रम तो अभी चलने वाला है और मैं बोलूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे समक्ष आप बोलते तो समय सीमा रहती, और जब मैं चला जाऊंगा तो आप खुल करके बोलिएगा। ये भी मुझे प्रसन्नता की बात है कि जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि बांग्लादेश और नेपाल के बोडो भाषी प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, इसी वर्ष मुझे बताया गया कि जनवरी में तामुलपुर जिले का गठन हुआ है। मैं तामुलपुर जिले के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित इस जिले के सभी निवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के राज्यों की सरकारों के मिले जुले प्रयासों से इस क्षेत्र में सौहार्द और शांति का वातावरण और भी मजबूत होता जा रहा है। इस परिवर्तन के लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा बोडो क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं। इस बदलाव में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थापित है, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। कोकराझार में स्थित बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर राज्यपाल महोदय स्वयं हैं, तथा अनेक महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक्स में विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की राह बना रहे हैं। इसके अलावा अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस सभा स्थल के क्षेत्र में
एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। देवी और सज्जनों, असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम की जनता के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। विकास तथा जन कल्याण के ऐसे कार्यों के लिए मैं राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी ने भी बोडो भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए इस सम्मेलन के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं श्री दैमारी जी को भी साधुवाद देता हूं। देवी और सज्जनों, बोडो समाज के लोगों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरे लिए बोडो संस्कृति और भाषा से संपर्क कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं राज्यसभा सांसद था तब इस क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों के साथ मेरा मिलना जुलना होता था। हम सब गर्म जोशी के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे और बोडोलैंड के बारे में भी बात करते थे। उनमें से मेरे कुछ परिचित तो आज की इस सभा में भी उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए यहाँ उपस्थित श्री यूजी ब्रह्मा। यूजी ब्रह्मा ने न केवल एक जनप्रतिनिधि और राज्यसभा सदस्य के रूप में बल्कि असम सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है, बल्कि वे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्कालीन उस समय एक सांसद हुआ करते थे श्री एस.के. बासुमतारी। उनका भी मैं नाम आज लेना चाहूंगा। वो मेरे अच्छे मित्र थे और उनकी विशेषता ये थी कि जब हम लोग उनको नमस्ते कहते थे तो वो नमस्ते का उत्तर हमेशा जय बोडोलैंड बोलकर दिया करते थे। देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि सामान्यतया राष्ट्रपति किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल में नहीं आते। ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आना किसी राज्य में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और उन मर्यादाओं के कारण संभवतः आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी, आपका, असम के लोगों का, उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच बीच में मिलता रहता है, वो मुझे बार बार खींच भी लाता है और इसीलिए मैं 3 महीने के अंतराल में दोबारा फिर आ गया। मित्रों, मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि मई का महीना बोडो भाई बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर साल 1 मई को आप सब बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि मनाते हैं, जो आज से 3 दिन पहले ही थी। बोडोफा ने जियो और जीने दो का जो महान संदेश था उसको प्रसारित किया था। बोडो आत्मगौरव के प्रति सचेत रहते हुए सभी समुदायों के साथ सद्भाव बनाए रखने का बोडोफा का संदेश हम सभी के लिए एक मंत्र जैसा है। मैं उनके संदेश को उन्हीं के शब्दों में ठीक ठाक तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके संदेश को बोडो भाषा में दोहराने का प्रयास जरूर करूंगा। उन्होंने कहा था, थांग आरो थाना नहीं थानो हा। देवी और सज्जनों, शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा को मान्यता देने का उत्सव वर्ष 1963 से प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। आज से लगभग 15 दिन बाद आप सब वह उत्सव भी मनाएंगे। उस महत्वपूर्ण उत्सव की मैं आप सबको अग्रिम बधाई भी देता हूं। देवियों और सज्जनों,
बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के उत्थान हेतु लगभग 70 वर्षों से अमूल्य योगदान देने के लिए बोडो साहित्य सभा का प्रयास उल्लेखनीय है। सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जयभद्र हागजेर तथा महासचिव सोनाराम थाउसेन ने बोडो भाषा के महत्व और मान्यता में वृद्धि करने के लिए सराहनीय प्रयास किए थे। स्कूली शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा के प्रयोग को स्वीकृति दिलाने तथा उच्च शिक्षा में बोडो भाषा को स्थान दिलाने जैसे प्रयासों में बोडो साहित्य सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई है। आप लोगों के प्रयास के फलस्वरूप बोडो भाषा को असम राज्य की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। बोडो भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने वाले महानुभावों का इतिहास बहुत प्रेरणादायक है। 20वीं सदी के आरंभ में बोडो पुनर्जागरण के जनक गुरुदेव श्री कालीचरण ब्रह्मा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के प्रयासों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा व सांस्कृतिक चेतना का भी प्रसार किया था। श्री रूपनाथ ब्रह्मा ने बोडो पुनर्जागरण की धारा को आगे बढ़ाते हुए बोडो भाषा और साहित्य को समृद्ध किया। बोडो भाषा और साहित्य के विकास में बीबर नामक पत्रिका का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका प्रकाशन आज से लगभग 100 वर्ष पहले सन 1924 में शुरू हुआ था। उसके संपादक श्री सतीश चंद्र बासुमतारी ने उस पत्रिका के माध्यम से बोडो समाज, भाषा और साहित्य में एक नई जागृति उत्पन्न की थी। देवियों और सज्जनों, श्री मदाराम ब्रह्मा ने बोडो नाटक और कविता के साथ साथ शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी थी। पद्मश्री का सम्मान प्राप्त करने वाले बोडो समुदाय के प्रथम व्यक्ति के रूप में उनका विशेष स्थान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री विजेंद्र कुमार ब्रह्मा बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे। प्रखर सामाजिक चेतना से युक्त साहित्य की रचना करने वाले तथा बोडो साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर ब्रह्मा को सन 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मंगल सिंह हाजोवरी को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से अलंकृत करने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मंगल सिंह हाजोवरी और नीलकमल ब्रह्मा जैसे अनेक बोडो रचनाकारों ने पर्यावरण को बचाने की चिंता से प्रेरित रचनाएं की हैं। मानवता के समक्ष उपस्थित ऐसी गंभीर चुनौती के विषय पर लेखन करना बोडो साहित्य की प्रासंगिकता का प्रभावशाली उदाहरण है। बोडो साहित्य को अनेक रचनाकारों ने समृद्ध किया है, जिनमें से समय के अभाव के कारण कुछ नामों का ही मैंने उल्लेख किया है। देवियों और सज्जनों, बोडो और असमिया भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सौहार्द के उदाहरण के रूप में मैं श्री सीतानाथ ब्रह्मा चौधरी का भी उल्लेख करना चाहूँगा। वे बोडो और असमिया दोनों ही भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन करते थे। वे असम साहित्य सभा के अध्यक्ष चुने गए। यही नहीं, उनके नाम पर असम साहित्य सभा द्वारा सीतानाथ ब्रह्मा चौधरी पुरस्कार भी दिया जाता है। बोडो अस्मिता तथा अन्य समुदायों के साथ सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का आदर्श सीतानाथ ब्रह्मा चौधरी के जीवन और कृतियों में भी देखा जा सकता है। बोडो भाषा की रचनाओं के आधार पर अब तक 17 रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जा चुके। मैंने देखा है कि उनमें 10 पुरस्कार कविता की पुस्तकों के आधार पर दिए गए। इससे बोडो रचनाकारों में कविता के प्रति स्वाभाविक रुझान का अनुमान दिखाई पड़ता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अनेक महिलाएं बोडो साहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य का सृजन कर रही हैं। लेकिन यह भी देखने में आया है कि मौलिक रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले वरिष्ठ रचनाकारों में केवल 2 महिलाओं का ही नाम है। मैं चाहता हूं कि महिला रचनाकारों को
राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मान्यता प्राप्त हो। मैं चाहूंगा कि बोडो साहित्य सभा द्वारा महिला रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। देवियों और सज्जनों, किसी भी साहित्य को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः बोडो साहित्य सभा द्वारा युवा रचनाकारों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। देवियों और सज्जनों, बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ और उसकी घोषणा जनवरी 2004 में की गई। उस समय भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। कवि हृदय वाजपेयी जी के व्यक्तित्व में भाषा, साहित्य और संवेदना के प्रति अनुराग झलकता था। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर के समारोह के अवसर पर मैं उनकी स्मृति को भी नमन करता हूँ। बोडो साहित्य सभा के उद्देश्यों और लक्ष्यों में मातृभाषा के जरिए शिक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। आपकी सभा का यह उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह निहित मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप भी है। इस शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाए जाने की सिफारिश की गई है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि बोडो भाषा में अन्य भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद बड़े उत्साह के साथ किया जा रहा है। यह किसी भी जीवंत साहित्यिक समुदाय की पहचान है। मुझे विश्वास है कि ऐसे अनूदित साहित्य से बोडो भाषा के पाठकों को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ विश्व साहित्य से परिचित होने का अवसर मिलेगा। मुझे यह भी जानकर प्रसन्नता हुई कि साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारतीय भाषा संस्थान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जैसे केंद्र सरकार के संस्थान बोडो भाषा के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मित्रों, भाषा भाषा होती है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, चाहे वो व्यक्ति विशेष की भाषा हो या व्यक्तियों के समुदाय की भाषा। भाषा, स्थानीय भाषा, उस भाषा को प्रोटेक्शन, संरक्षण देना, उसका प्रचार और प्रसार करना, ये समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, बोडो भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए जितना भी प्रयास हो वो आपकी सरकार करे। मैं ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ। अंत में मैं बोडो भाषा से जुड़े सभी लोगों को ये शुभकामना देता हूँ कि बोडो भाषा खूब फले फूले बोरो राव गे वालांथो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। আৰু সেয়া আমি আগবঢ়ালোঁ তামোলপুৰৰ পৰা বড়ো সাহিত্য সভাৰ 61 সংখ্যক অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী। আৰু অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰামনাথ কোবিন্দে। আৰু ৰামনাথ কোবিন্দৰ ভাষণৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়ালোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। আৰু ভাষণ প্ৰসংগত বড়ো ভাষাৰ তথা বড়ো সাহিত্যৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। লগতে যোৱা 2 মাহত 3বাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণলৈ অহাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। মানুহৰ সমাৱেশ দেখি অভিভূত হৈ উঠে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। লোকে লোকাৰণ্য হৈ উঠে সাহিত্য অনুৰাগীৰে আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনস্থলী। আৰু উপস্থিত জনতাক সম্বোধন কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতি দেখি অভিভূত হৈ উঠে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। আৰু বড়ো ভাষা তথা সাহিত্যৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে।